أعوذ بالله من الشैतान الرजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। So ये तुम्हारा इंटरव्यू की प्रिपरेशन है इब्राहिम। कल तुम्हारा इंटरव्यू इंशाल्लाह 11 बजे यहाँ कनाडा में। तो तुमने कहा था these are the points on my resume. I need your wording to explain them. Monday I have my interview. देखो तुमने कुछ काफी सारे पॉइंट्स भेजे हैं। सेट एंड मॉनिटर द आईटी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के जो पहला रिक्वायरमेंट है होता ये है यू हैव टू एक्सप्लेन कि भाई कैसे करते हैं। इस बेसिकली जैसे मैंने तुम लोगों को सारा स्काडा की उस सब डोमेन्स में पढ़ाया है कि भाई you meet the organization senior management decides what kind of security standards we have to follow, and those are dictated by basically the business requirements. When we visit customers, there are customers for whom we have to comply PCI DSS. There are customers for whom we have to comply 27001, 27017, 27018 if they're in cloud, and pretty much everyone nowadays is using cloud in one way or the other. And then if it's an electrical grid, 27019. If it's a service management audit, then it's ISO 20000. All of these requirements are dictated by them. My job is to ensure that if it's a 27001, then I set the security standards, and whatever architecture we have, whether those are the data center architecture, the network architecture, the operating system, rollout, what kind of requirements you have to follow, the hardening guidelines, all of these things, they are basically dictated by the standards and the business requirements. So I have to coordinate with different, functional groups, group functions. There are different groups where I have to coordinate and talk to them, ensure that I understand their guidelines, their requirements, and hence I define and monitor and ensure that that those group functions are following the IT security standards. Okay, so ये तुम्हारा पहला सवाल है। फिर दूसरा सवाल है define the group IT security policy in line with ISO 27001 सब है। तो तुम बताओगे कि भाई in the present circumstances we have to comply with 27001, 27017, and 27018, and my role is to make sure that I supervise the implementation of those controls, whether those are technical controls, proactive controls, preventive controls, detective controls, corrective controls. They can be as simple of a control of having a change management request to as complex of like having a file integrity monitoring solution and monitoring the seam, all the logs of the seam, so on and so forth, right? So all of these group policies, standards, and guidelines are created in line with the business requirements. And my job is to ensure that those are compliant, those business functions are compliant, and they are adhering to all of those key requirements, okay? Manage IT risk through detection, identification, monitoring, evaluation, and mitigation. This is like where we do continuous risk assessments, every 6 months. And then if there's a customer, then we have to perform those, like internally, we have to do it ourselves as well. And then externally, we have to do it for other customers as well, right? So this is a continuous task that we have to go in and perform these things. For the business, we do it once a year. For the customers, it depends on their, as per the RFP, request for proposal, when it comes into us, request for information, the RFI and the RFP, that dictates like what kind of requirements we will end up delivering to them. Okay. दूसरा है manage IT risk through, अच्छा ये हो गया, apply security risk management principles to conduct a quantified assessment of first line business applications. So यहाँ तुमने बताना कि भाई in my organization we follow 27005. Now I have been through the CMMI, Octave model. I have been through the Octave assessments. It's pretty comprehensive, but normally we follow the 27000 and 5 requirements, and that dictates how we have to perform the risk management principles and how we have to apply those risk management principles. Like, for example, we have to identify the assets, we identify the vulnerabilities to those assets, how can they be exploited, and how can they be translated into threats, and what kind of mitigation controls we can deploy to address those threats. Are we going to mitigate those threats? Are we going to accept those threats? Are we going to deny those threats? All of those things goes through
the process, right? And I'm part of that team. Establish the scope and analysis and define analysis success parameters. ये तो बताओ भाई कि everything requires a context. You cannot employ all the controls throughout the business. No, it is not possible. It is not feasible, right? Even the US government, which is the most powerful government, or all the G7 governments of the world, like all the G7 countries, they have the deepest pockets, but even they themselves cannot deploy 27001 or any of these standards in each and every department. No, you have to define the context, the scope, and the analysis, and define the analysis success parameters. That is what establishes all the key controls. So you have to perform your risk assessment, and based on the risk assessments, you deploy the controls on all your crown jewels to make sure that they are secure and compliant. Okay. Collect relevant data points and guide local IT security managers. We do this through SIEM. We review the SIEM reports, see where the failings are, and then we set up those things accordingly. Review results to identify potential outlier data inputs, identify potential cyber threats, analyze the risk, and recommend controls based on the analysis results. So this is where like the SOC team comes in, and my job is to be the intermediary between the businesses and the SOCs. And this is where I go in and get those reports, and I review those reports after the first line review of the SOC. So if the SOC finds something, they inform me. My job is to go in and perform those things and review those things and understand those things and then perform those things. Ibrahim, tum aage? मैं इसको पॉज करता हूँ, 1 मिनट सब्र करो. ऑलरेडी मैं हाफ कर चुका हूँ, तो मैं उसको तुम्हारे इंटरव्यू को पढ़ते हुए आ रहा हूँ जो उन्होंने पूछा है, और मैं उसकी तैयारी करवा रहा हूँ तुमको. तो तुम्हारे आने से पहले मैंने तुम्हें मैसेज किया था, तुम थे नहीं, तो मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी अपनी. नाउ ये आधा तुम्हें वहाँ मिल जाएगा, लेकिन इसकी पूरी रिकॉर्डिंग जो है मैं सेशन के बाद यूट्यूब पर डाल दूंगा, तो तुम वहाँ से देख सकोगे इंशाल्लाह. ओके, सो मैं बता देता हूँ तुमको जो तुम्हारा इंटरव्यू है, तुम्हें किस तरह से क्या जवाब देना. ये जो तुमने पूरा CV लिख दिया, तुमने पूरे CV लिख दिया कि मुझे इसका जवाब दे दो, राइट? ये लिखा है तुमने. इब्राहिम, तुम अपने आप को म्यूट अनम्यूट कर सकते हो. इब्राहिम, तुम घर में बैठे हो, कहाँ बैठे हो? मैं ये भी घर में आया हूँ असल में. तो एक कमरे में जाओ और अपना माइक खोलो, ना खामोशी हो, और इनेबल करके ना अपना फेस दिखा के कर दो, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर होता है बजाय इसके कि ना इंसान का चेहरा नजर नहीं आए. ठीक है, मैं इसको रीडिंग करता हुआ जाता हूँ और तुम्हारे एक एक पॉइंट्स जो है उसको डिफाइन करते हुए आ रहा हूँ. ठीक है, सो अब मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ कि जो तुम्हारा कल इंटरव्यू है ना, जो तुमने मुझे जॉब डिस्क्रिप्शन भेजा, उसका पूरा इंटरव्यू की प्रिपरेशन है. ठीक है, मैं सबको भेज दूंगा जिसके CV में पॉइंट्स होंगे ना, तो उसको जवाब कैसे देना है, क्या करना है, उसको सारी चीजें वहां पर समझ आ जाएंगी. ओके, सो यहाँ इसके बाद लिखते हैं अप्लाई. यहाँ पर था analyze existing cybersecurity mitigation strategies, controls, and assess their effectiveness. तो इसके बारे में तुम बताओगे कि normally within my own organization we perform risk assessments on an annual basis. For the customers, we perform it. The part of the team where I am in, I also do this for other customers as well, because it's an internal and external consulting group. And what we do is we use the standards which are required, and we use those standards and we try to figure out and analyze all the controls, all the risks which has been identified, and we try to see and assess if those controls are effective or not. For example, example batao, ठीक है? ये analyze existing cybersecurity mitigation strategies controls तुम्हारे उसमें लिखा हुआ है ना, तुम्हारे मैसेज में लिखा है, मैं उसको पढ़ते हुए आ रहा हूँ. तुम यहाँ बताओगे, for example, if we have a FIM, file integrity monitoring solution, right? Any changes within the directories, the critical directories of the critical systems, for example, if it's an etc folder within the Windows or the critical folders of Linux, how are we really monitoring them? If any changes happens, what do we do? Is someone taking action or not? Is someone trying to assess whether those changes were approved or not?
if someone is deploying patches or anything like that on a system, the FIM will pick up those things. So my job is to ensure that I go in with the SOC. When the SOC comes to me, we have a different process. When the SOC sees something, they inform the team to go in and coordinate with with the business process owners that something has been done on those systems. If those are patches within the defined window, it's fine. But if it's something that was not defined in a defined window, because we perform patches once a month on a defined time. But what happens is, just like, even if there are patches, if there are vulnerabilities, we assess, and it can take up, for us, it can take up to 3 months, unless and until it is a critical patch, because there are many applications and we cannot just go in and roll out the patches like this, right? We have to assess many things. We have to test out those patches in the dev, and there are so many things that we have to do. So इसके बारे में तुम इस तरह से बताओ. लिखा है writing detailed reports containing findings, observation and recommendation. ये रिपोर्ट राइटिंग तो तुम्हें वहां सारी करवाई है, और तुम यहाँ पर भी इसमें करोगे तो तुम्हें अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा उसका, ठीक है. रिस्क एनालिसिस एक्सपीरियंस इन लाइन विद ISO 27005, इसके बारे में मैंने बताया, और वो जो पूरा टेम्पलेट है ना रिस्क एनालिसिस का, जो तुमने देखा था, वो चीज़ वहाँ पर मौजूद है. प्लीज़ एक कमरे में बैठो इब्राहिम, और वहाँ अपना माइक खोलो ताकि आवाज़ आ सके और तुमसे बात सही तरह हो सके, ठीक है. उसके बाद है a robust understanding of IT and information security risk mitigation control processes, such as vulnerability risk management, threat management, patch management, penetration testing. तुम बोलो भाई मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और तुम्हें यहाँ पर गनीमा की सारी लैब्स का जिक्र करना है कि भाई मुझे vulnerability assessment की सारी लैब, मुझे सारा काम आता है, किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं. Because I do this externally. For internally within the company there are different teams, but externally I go out and I do this as well. So whether it's like internal vulnerability assessment, external vulnerability assessment, internal penetration testing, external penetration testing of the networks, external web application penetration testing. So यहाँ तो मैं बताना है. So testing out the OWASP top 10 requirements and all those kinds of things, right? So I do understand the requirements and I do understand all of these key things and I can do all of those things. तो ये तुमने सब उसको बताना है. फिर इसके बाद है पैच मैनेजमेंट के बारे में बताना है. जैसे मैंने बताया कि वो तो तुम्हें पता ही है कि तुमने विंडोज की एनवायरनमेंट मैनेज की है ना, या नहीं की है? इब्राहिम, हमारी आवाज नहीं आ रही. तुम्हारे पास अनम्यूट करने का ऑप्शन है. देखो प्लीज नेक्स्ट टाइम एक ऐसी खाली जगह पे बैठो जहां तुम्हारी आवाज आ सके. हाँ जी सर, मैं आपकी वो सुन रहा था, मैं उसको थोड़ा सा फेसबुक वाला ओपन हो गया. हाँ प्लीज ना, बी फुली प्रिपेयर्ड. जब मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें कॉल करने वाला हूँ, सो बी फुली प्रिपेयर्ड, ठीक है. सो यू हैव टू बी फुली प्रिपेयर्ड. पैच मैनेजमेंट और थ्रेट मैनेजमेंट के बारे में तुमने वही बताना है जैसे मैंने पूरी ऊपर एग्जांपल दी थी. A robust understanding of IT and information security risk mitigation controls, ये हो गया. Understanding of how cyber impacts business objectives. बोलो मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अगर हमारा डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है या हमारी एप्लीकेशंस कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं, डाउन हो जाती हैं, दैट इज अ बिग पोटेंशियल इशू. सो हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ दोज इश्यूज? व्हाट डू वी हैव टू डू टू टैकल दोज इश्यूज? सो all of these things, they do matter, right? And my job is to ensure that I understand these requirements and I'm in a position to recommend the appropriate controls for the business, right? तो ये तुमने इस तरह से उनको बताना है. This is very important. अभी तुम्हारे पास टाइम है, जितना मैं तुमको बता रहा हूँ इतना सवाल करेगा भी नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, ठीक है. वही बंदा दोबारा इंटरव्यू ले रहा है या दूसरा बंदा इंटरव्यू ले रहा है? नहीं, वही ले रहा है, वही वाला वापस ले रहा है. वही दोबारा वापस ले रहा है. अच्छा ठीक है. वो तुमसे पूछेगा कि भाई क्या हुआ तुम्हारा, बोलो भाई मैं राइट रोल को देख रहा हूँ, अगर मुझे अच्छा रोल मिलेगा तो मैं देखूंगा. तो मैं BSI में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, बिकॉज यहाँ पर ना काम बड़ा अच्छा है, काम बड़ा ज़बरदस्त है और बड़े अच्छे लेवल पे लोग काम करवाते हैं. सो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ. लेकिन जाहिर सी बात है कि आई एम लुकिंग फॉर द राइट रोल, कि मुझे इस रोल में क्या फ़ायदा होगा. And if I see that this is the right role for me, then obviously, I will go for it. And to me now, BSI is one of the organization where I can certainly go in, right? उसके बाद है knowledge of cyber threats vectors both generally and sector specific. बोलो भाई तुम्हें sector specific SCADA का बताना है, I'm there. Web applications का बताना है, I know, because I keep myself updated.
नेटवर्क्स का वो बताना है, आई नो। log4j के ऊपर पूछ सकता है, log4j के ऊपर तुम्हें क्या पता, बताओ भाई ओपन सोर्स वल्नरेबिलिटी है अपाची सिस्टम्स की, उसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ के जाओ, ठीक है ना। जो ओपन सोर्स लाइब्रेरीज यूज होती हैं उसके अंदर log4j आता है, तो यू हैव टू डू ऑल ऑफ द फुल प्रिपरेशन। आर्किटेक्चर, टोपोलॉजी, पोर्ट्स, प्रोटोकॉल, सर्विसेज, ठीक है ना। तो नॉलेज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सच एज क्लाउड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन, तो बताओ उसके बारे में कि भाई मैंने तुम्हें ब्लॉकचेन पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी क्या है, एआई के ऊपर तुमने पढ़ा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में तुम्हें पता है, बोलो भाई ये सब चीजें आ रही हैं, इन सब के अंदर बहुत ज्यादा वो है। और उसको बता दो कि मैं बहुत सारी चीजें पढ़ रहा हूँ अभी, एंड आई कीप माई सेल्फ अपडेटेड, एंड आई नो दैट द नेक्स्ट एवोल्यूशन इवन फॉर द BSI would be to go and understand how an organization whose whole process is being managed as infrastructure as a code, right? How would we will ensure that that organization is compliant with respect to 27,001? So batao ke bhai, the threats and the landscapes are changing, right? And the BSI, I'm pretty sure that you guys are already discussing all of these things. You know, auditing cloud is not easy. Auditing DevOps processes is not easy, right? Auditing SecOps processes is not easy. Auditing applications is not easy, especially if those applications are utilizing Dockers, Kubernetes, and all these different technologies, right? So I am that kind of person who can go and I can certainly bring value to the team by bringing in my technical expertise, right? तो जो तुमसे सवाल पूछ रहा है वो वही ब्राजीलियन बंदा है, वही जो तुम जिसका नाम ले रहे थे पहले, वही है? जी जी वही वही वही। बोलो भाई मैं रेडी हूँ काम करने के लिए, तो मुझे बताओ, आई एम रेडी, आई एम फुली प्रिपेयर्ड, ठीक है। अच्छा, गुड नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमन कंट्रोल्स। अब अच्छा हाँ बताओ कि भाई कौन सी टोपोलॉजी, कैसा आर्किटेक्चर है, नेटवर्क आर्किटेक्चर कैसा है, उसमें प्रोटोकॉल्स कौन से खुले हुए होने चाहिए, कौन से वो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट हमें बताती है, सर्विसेज कौन सी होनी चाहिए वो तुम्हारा वल्नरेबिलिटी असेसमेंट बताती है, ठीक है। अननेसेसरी सर्विसेज तो नहीं हुई, डॉक्यूमेंटेड पोर्ट्स होने चाहिए, क्या है किस तरह से है, वो सब चीजें हमें बतानी होती हैं, ठीक है। नॉलेज ऑफ डिफरेंट थ्रेट्स, एक्टर्स, कैटेगरीज, स्टेट, नेशन, क्रिमिनल, जनरल हैकर्स, एक्टिविस्ट एंड देयर कॉमन टेक्निक्स। बोलो ये सारा माइटर अटैक है। माइटर अटैक जो है उसके अंदर सब चीजें आती हैं, ठीक है। सो माय रोल इज टू इंश्योर के क्या नाम है, माइटर अटैक के बारे में पढ़ता रहता हूँ, और ऑर्गेनाइजेशन में जितने अटैक्स हो रहे हैं वो माइटर अटैक के ही थ्रू हो रहे हैं। सो दैट इज द कोर फ्रेमवर्क, ठीक है। एबिलिटी टू डेवलप एंड evaluate टेक्नोलॉजी पॉलिसीज, टेक्निकल इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स। बोलो भाई मैं बड़ा वेल वर्स्ड हूँ, चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो लिनक्स हो, ठीक है। whatever systems organizations have, I can certainly devise those standards. अब तुमने SysOps पूरा पढ़ लिया ना? जी फैजल और तुमने लैब्स भी सारी कर ली, राइट? जी सब कर। डेटा साइंस तुमने कितना पढ़ा? डेटा साइंस फैजल भाई पूरा तो नहीं किया अभी, बस थोड़ा सा ही किया है, इतना ज्यादा नहीं किया। प्लीज इस पे थोड़ी मेहनत करो ताकि तुम्हारी फुल प्रिपरेशन हो, ठीक है ना, ताकि तुम अपने आप को थोड़ा और उसमें वो कर सको। ये पैकेज क्या ऑफर कर रहे थे? नहीं डेटा साइंस भी फैजल भाई जरूरी है, मैंने देखा पैकेज उसने मुझसे पूछा था उसने, लेकिन वैसे मुझे ये नहीं बताया कि हम कितना ऑफर कर। तुमने क्या बोला था उसको? 75। तुम लोग अंडर सेल कर देते हो अपने आप को। $75,000 तुम उसको बोलते भाई तुम्हारे पास क्या है देने के लिए, ठीक है। तुम ये बोलते हो उससे भाई, आई मीन व्हाट डू यू बिलीव इज कमेंसरेट टू माय स्किल सेट, तुम ये बोलो, ठीक है। बिकॉज आई नो माई वर्थ एंड आई कैन डिलीवर वैल्यू टू यू। तुम बताओ उसको, ठीक है, ठीक है ना। तो तुम उसको ये बताओगे तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। चलो अब तुमने 75 बोल दिया, अब जाओ 75 में, ठीक है। अब क्या हो सकता है, अब तुमने बोल दिया, बोलो यार साइन ऑन, अब साइन ऑन बोनस निकलवाना उससे 5,000 का, ठीक है। बोले यार कोई साइन ऑन बोनस है, ठीक है, तो वो तुमसे बताएगा, ठीक है। क्योंकि ना, क्योंकि बोलो भाई मेरे इंटरव्यूज हो रहे हैं, मुझे कुछ साइन ऑन बोनस भी दो यार, ठीक है। पूछो तो सही क्या है। वो देखो ना, अहमद अली खान गया था, मैंने कहा साइन ऑन बोनस पकड़ लो, उसने साइन ऑन, उन्होंने कहा हम साइन ऑन बोनस दे देते हैं, ठीक है। तो बोलो भाई मुझे ऑफर्स जो है ना, देखो बोलो मैं लॉन्ग टर्म पे काम करने वाला आदमी, ठीक है। मैं BSI में आ गया तो मैं BSI में इतना काम करूंगा कि सारी सारी चीजों पे काम करूँ और मैं वैल्यू भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। BSI में तुम जाके बैठ गए तो दुनिया के सारे स्टैंडर्ड वही बनते हैं, राइट।
ये उसने लॉन्ग टर्म का भी मुझसे पूछा था, मैंने कहा मैं लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा हूँ, इस वजह से मतलब मूव करना बोलो मैं चाह रहा लॉन्ग टर्म, बोलो मैं लॉन्ग टर्म आदमी हूँ, बोलो मैं फैमिली वाला आदमी हूँ, मैं चेंज नहीं करता भाई काम, ठीक है, मैं एक जगह काम हूँ। करता हूँ आराम से बैठ के, ठीक है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि यार तुम मेरा ख्याल करो ना यार, ठीक है, तो कुछ तो दो मुझे। अच्छा बीएसआई के पास बहुत पैसा है यार, बहुत पैसा है इनके पास, और दे कैन पे यू। तुम अगर बोलते ना 95 to 100, वो बोलता ठीक है तो चलो अब जाओ तुम, कोई मसला नहीं। अभी तुम जहाँ काम कर रहे हो फैक्ट्री में, वहां कितने पैसे मिलते हैं? वो बताया था मैंने आपको। $5 an hour? हाँ, नहीं, मैंने कहा मैंने आपको बताया था 18। $18 an hour, अच्छा अच्छा। हाँ मैंने कहा अच्छा $18, तो चलो 75 में तुम्हें ज्यादा मिलेंगे, मतलब कि अच्छे खासे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। क्या बनते हैं जो भी है, मैं देखता हूँ एक मिनट, बट द पॉइंट इज के नहीं नहीं, मैंने उसको 75,000 कहा था। हाँ हाँ मैं समझ गया, $75,000, हम्म, ठीक है। $75,000 तुम्हारे बनेगा 12 महीने के हिसाब से, $6,250 तुम्हें कट कटा के 4,000, 4,500 मिलेंगे, ठीक है। 4,500 को अगर तुम ना 160 पे डिवाइड कर देते हो तो तुम्हें, हाँ ठीक है, सही है, बुरा नहीं है, इसमें इनके बेनिफिट्स वगैरह होते हैं, मैं कट कटा के 6,225 है ना, ठीक है ना, तो सही है, ठीक है, बुरा नहीं है। तुम जाओ बिस्मिल्लाह करो, अल्लाह ताला से दुआ करना खूब कि भाई अल्लाह ताला तुम्हें, अच्छा। हाँ इंशाअल्लाह तुम्हें अल्लाह ताला अच्छा फैसल भाई, एक क्वेश्चन जो उसने पूछा था कि ऑडिट में उसकी कोई बैड थिंग बताओ और उसकी कोई गुड थिंग बताओ, ऐसा ऑडिटर। देखो यार, बोलो ऑडिटर जो है ना, जो सबसे मुश्किल काम है ना बीइंग एन ऑडिटर, ठीक है ना, वो है कि यू हैव टू थिंक। देखो देयर आर टू काइंड्स ऑफ, उसको बोलो भाई यू ऑलरेडी नो देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑडिट्स, वन इज द इंटरनल ऑडिट, वन इज द एक्सटर्नल ऑडिट। If you go in as a certification auditor, then you have to be very strict. I mean, not strict, bolo, don't use the word strict, then you have to be very, then you have to work with extreme due care and due diligence, right? You have to ensure that, because but then you also need to show some leniency and flexibility as well, right? And the most difficult part of the auditor, and the best and the worst part of being an auditor, right, ye batana usko कि अच्छी बात और बुरी बात ऑडिटर की क्या है, is to understand the requirements and how, if you can, and how those requirements are implemented by the customer, ठीक है, and that is the most difficult part। बोलो उसको, बोलो भाई ये सबसे मुश्किल पार्ट है। तुम्हारे पास स्टैंडर्ड की कॉपी है, आईएसओ स्टैंडर्ड की कॉपी है तुम्हारे पास? 27,001 की 1 की है मेरे पास। 1 की है कॉपी ना, तो उसमें तुमने क्या पढ़ा? उसमें मैंने वो जो आपने 4 to 8 वो तो तकरीबन मैंने काफी दो पढ़ी। उसके अंदर तुमने पार्ट 1 पढ़ा, स्टैंडर्ड पार्ट 1 स्टैंडर्ड पढ़ा तुमने? जी। हाँ तो पार्ट 1 स्टैंडर्ड में तुमने क्या पढ़ा? एक मिनट सबर, मुझे, मैं अपने पास खोल रहा हूँ तुम्हें एक चीज बताने के लिए, ठीक है। ये तुमसे इस ब्राजीली ने पूछा था कि अच्छी और बुरी जी चीज जी। बताओ, हाँ, जी हाँ बोलो। जी जी। वो तुमसे दोबारा सवाल करेगा, तुमने क्या जवाब दिया था उसको? मैंने इसको अच्छी का ही बताया था कि इसमें ये है कि आप ज्यादा चीजें सीखते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है देखी जाती है, मतलब एप्लीकेशन जो सब कुछ। मैं तो यही नहीं नहीं, कहा था कि उसका सवाल थोड़ा हट के था, मतलब कि उसका सवाल जो था ना वो ये था कि भाई तुम क्या समझते हो कि अच्छी और बुरी चीज इसमें क्या है, तो तुमसे इस तरह हाँ सवाल, ये कुछ हाँ यही ठीक है। क्वेश्चन था। तो 27,001 के ना दो पार्ट्स हैं, एक 27,001 है, 27,002 है। अगर तुम 1 खोलोगे ना, 1, और तुम 1 खोलते हो ना अपने पास, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें 3 किस्म है, सेक्शन 4 to 8 है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4 to 10, ठीक है ना। बोलो भाई, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ एन ऑडिटर, of being an auditor, is to understand if the customer has implemented the controls properly. Now forget the 27,002 part, that's the easiest part, right? That's the easiest part.
You know what the difficult part to me is? Because those controls are simple. You look at the control, if those controls are there, you gather the evidence, you take some sample depending on how big the network is, and you, if there are 100 servers, you just say, okay, just give me 10 server tickets, stuff like that, review that, so on and so forth, right? तो सैम्पलिंग आप से करते हैं, अपने गेस्ट वर्क पे सैम्पलिंग करते हैं, और you follow the sampling as dictated by BSI. If the BSI says you have to take, if there are 1,000 servers and you take 100 servers, that's not possible, but you just take the best guesses of 10 servers, right? So you go and review the risk management report, and based on the report, you pick up those servers which are critical, right? Because there are 1,000 servers, 2,000 servers. I mean, the environments can be extremely large to massive environments, right? To a mid-sized environment, it's easier. So bolo bhai, when it comes to 27,002 controls, those are simple, right? If there is any access control, document it. Where is it documented? Are you following it? So on and so forth. The most difficult part of being an auditor, and this is where comes the best part and the worst part, is the 27,001 section 4 till 10, especially the 4 till 8, right? The 4 till 10 is the most important part. What is the context of the organization? How has the organization, quantified their things, right? So context of the organization, बहुत important है. Okay. The second thing is leadership. Who owns it? Third is planning. Fourth is support. And the next is, fifth is the operations. And then performance evaluation and improvement. Many auditors, being a good auditor means you really understand the business requirements, and if you understand the business requirements, then you can define the context of the organization, because sometimes the customers may not be effectively will be able to define the context of the organization. So you have to go in and you have to recommend them that the context is not being defined properly, right? They may be, example though, they may be trying to certify an application. This is the payment processing application, or an application which is keeping a lot of sensitive data in it, right? If it's in a cloud, then we have to look into 27,017 and 27,018 controls. If it's hosted within the data center, then there is none of those controls are applicable. Then we look at 27,001 only, right? But then we go in and we say, okay, what are the systems where this application is talking to? So all of those systems are under the scope, right? So defining the scope, the context, is the most important part. And this is where you can be the best auditor or you can be the worst auditor, right? And this is the most difficult part that I've seen. And I've been mentored by my own, CIO, mera naam lo, my own CIO, who has been working as the CIO of large organizations and now managing this. He taught me that. And I really appreciate his teachings, because that's the most difficult part, right? And then the leadership, who owns the ISM standard, right? Does the senior management really owns it or not? And then the planning, is the planning being done? And then the support, do you have the right resources? Do you have the right competence, awareness, communication, and documented information? These 5 key bulletin areas, these 5 key parts. Then operational controls, operation security assessment, all of these things, they matter, right? So तुमने उसको बहुत अच्छे तरीके से ये सब चीजें explain करनी होंगी, right? और मेरे ज़हन में कोई ऐसी चीज नहीं आ रही. This is a very good answer जो तुम्हें बताना होगा उसको. ठीक है? और क्या तुमसे सवाल पूछ सकता है कि जो तुमने इंटरव्यूज दिए हैं माशाल्लाह, क्या तुमसे सवाल पूछ सकता है? डेली एक्टिविटी, रूटीन, आपके जॉब पे क्या रूटीन है? भाई बोलो, रूटीन ये आता है कि RFP आते हैं मेरे पास, RFIs आते हैं, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, सो वी फिल इट आउट, वी सेंड इट इन. रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आता है, ठीक है. RFPs हम भरते हैं, मैं भरता हूँ साथ में बैठ कर कि हम ये सर्विस इस तरह से करेंगे. बिलिंग मेरे पास नहीं होती, दैट्स someone else. एंड देन हमें अपना स्केड्यूल दिया जाता है कि आपने इंटरनली कितना काम करना है, एक्सटर्नली कितना काम करना है. इंटरनली हमारे ऑडिट्स कब आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे, क्योंकि मैं इंटरनल ऑडिटर अलग हूँ कंपनी में, और एक्सटर्नल ऑडिटर मैं बाहर जाके सर्विसेज भी हम लोग ऑडिट्स करते हैं, सब कुछ करते हैं. जो तुम लोग यहाँ पर सारा करते हो, ये सारे बाहर के ऑडिट्स हैं, ठीक है. सो जस्ट तुम गनीमा में करते हो, तो बोलो तुम एक्सप्लेन करोगे, भाई दैट्स माय डेली एक्टिविटी. ऑन एन एनुअल बेसिस वी गो थ्रू
I mean, I go through 15 to 20 assessments roughly. This is the kind of assessment that you have to go through all of those things, right? So one day you're doing 27,001, the other day you're doing 62443 for the SCADA IT/OT systems, and in one week, then there will be a break for report writing, and then the next week, the third week, you go in for 62443. That may take a longer time because you have to read it. You have to understand the architecture, and the SCADA architecture is very convoluted. It's very difficult to understand, so on and so forth, because there are multiple things in there. Then that engagement may last for 1 month, but then you have to follow up with 27,001 engagement. Normally, without 27,001 engagement, 1 week out there, right? If it's a consulting, it's 1 to 2 weeks. If it's so we all normally do consulting. We are not a certified organization where we do certification audits. No, we do consulting, right? So I go in and I perform those consulting things, and we provide those, those assessments. So my job is to perform risk assessments, and every day you learn, every month you learn about new customers. So as I said, 10 to 15 is the scale where I lie in, right? So that's the kind of report writing that you have to do. But obviously we have to that, but at the same time, you have to manage internal things as well, right? Internal audits as well. And those are once a year, or after any major change, they perform risk assessments, gap assessments. Major change means like if they're introducing new systems, new applications, new infrastructure, which changes the whole criteria of the network, then obviously we have to perform those things as well. Ye tumhari daily activity. Partnering with the SOC Security Operations Center, working with them, because I have a deep interest in vulnerability assessment, offensive security, like vulnerability assessment, web application pen testing, network pen testing, stuff like that. So I do that as well. Policy writing, policy updates, policy reviews. It's a busy schedule. ठीक है, ये बताओ और क्या आंसर? एक क्वेश्चन ये पूछा था गैप्स, डिफाइन द गैप्स। जैसे अभी आपने कहा कि गैप्स को डिफाइन करते हैं हम, तो वो भी मुझसे एक क्वेश्चन से पूछा था कि मुझे फिर गैप्स को कौन से थिंक करते हैं? बोलो भाई, सबसे ज्यादा जो गैप्स होते हैं ना, सॉक की सोल्यूशन होती है, आपने सीम की रिपोर्ट्स देखनी है, सॉक वाले सीम की रिपोर्ट्स ज़्यादा नहीं देखते क्योंकि इतनी सारी, दे हैव सो मच डेटा दैट दे स्टार्ट मिसिंग थिंग्स, राइट? I have deep interest in data science. I'm learning data science, and now what I'm doing is I'm recommending to them that let's apply data science and big data technologies to automate most of these tasks. Right, so that's the biggest gap. If you go in any SOC, I can guarantee you, agar kisi company mein bhi audit de rahe ho, bola you have a SOC. If I ask them, what is ISO 27035? They will say, what are you talking about? We don't know this. And now, my guess is that my 99% guess is they don't know. You guys may know, but I'm assuming they don't, because I have seen so many audits, I've done so many audits that I know that they don't know this, right? If you ask the SOC guy who is reviewing the reports, the SIEM guy, why are you reviewing these reports? What is the intent? What are you looking for? They'll be clueless. Now, don't be surprised. I've seen this at Fortinet. I've seen this at Symantec. I've seen this in some of the largest security providers, right? So you guys are not alone here. But that is the biggest misconception. The biggest gaps that you will see will be in SOC. The biggest gaps that you will see will be in understanding the business requirements and how the controls are implemented there, right? The business requirement may be separate, and the control that has been designed to protect that information is inadequate. So there are so many things, like for example, there's a requirement that data needs to be encrypted, right? While in transit, right? So you will see, if you run scans, you will see unencrypted data lying around throughout the network. So that's another big problem that you will see in organizations. Systems are not hardened properly. That's another biggest problem. You will always see default settings running on those systems, whether those are web facing or internal. You will see that. Unnecessary protocols are open. This is something these are the problems that you will see every single day. Unnecessary services are running,
unnecessary protocols are running, unnecessary resources are being allocated, systems are residing outside of the DMZ when they should be behind the firewall. There are so many things. Systems are not hardened properly as per the CIS guidelines or as per the business guidelines. If the organization needs to comply with PCI DSS or 27,000 or any of these requirements, 27,001 is a very generic standard, right? It's a very high level standard. It doesn't go in detail. It just tells you the key controls you need to have in place. But the PCI DSS, it goes deeper. And some of the other controls, they go, some of the other frameworks, they go deeper. But at the end of the day, you will see these issues popping up time and again. Another issue I can tell you is identity access management. It's not being managed properly. Another issue I can tell you is password privilege access management. It is not managed properly, right? You will see people who have left the organization, they still have access. Their access is still active. Their privilege is still there. So you will see these issues popping up back and forth, back and forth, back and forth. These are the biggest gaps that you will see time and again in any and every organization out there, because they're so dynamic, and this requires a very concentrated effort throughout the organization. Okay? And I can go on and on and on for this, but since time is short, respecting the time that we have to right now for the interview, I think that you get what I'm coming from. You already got the idea where I'm coming from. ठीक है इब्राहिम? अच्छा, वैसे भाई क्वेश्चन ये भी था कि जिस कंपनी में तुम काम कर रहे हो, क्या वो ISO 27001 सर्टिफाइड है कि नहीं? नहीं, ये सर्टिफाइड नहीं है. बोलो सर्टिफाइड नहीं है. They are not certified, but they adhere to the standard, but they're looking to get certified, in the next 3 years. अभी हम तो 27,000 ISO 17035 लेंगे अपनी सर्टिफिकेशंस के लिए, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है? उसमें एकेडमिक कंट्रोल्स हमें चाहिए, लेकिन हम जो 27,000 की सर्टिफिकेशन, $1 मिलियन खर्च हो जाएगा अगर मैं अभी चला गया. अभी मुझे यूनिवर्सिटी खड़ी करनी है. नहीं. But we adhere to those controls. We adhere to those controls. We conform to those controls. Conformance, there is conformance, but we don't have the certification yet. We intend to go in that route in the next 2 years, because the network is very complicated and complex. ठीक है? ठीक है. हमने ये क्वेश्चन से मुझसे पूछा था पिछले दौर. जो भी सवाल पूछो ना लिखो. ये इंटरव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें करवा दिया है. इट कवर्स ऑल द की एरियाज जो तुम्हारे स्टैंडर्ड में था. बाकी यहाँ पर है इंस्टॉलेशन ऑफ लिनक्स OS CentOS 6, 6.4, 7, RHEL 5 and 6, and ये सब चीजें तुम्हारी लिखी हुई है. नहीं, नीचे वाली मुझे पता है. नीचे वाली का इशू नहीं है. जो स्टार्ट की चीजें थी ना, उनका मैं थोड़ा सा वो मैं देख लेता हूँ अभी. बाकी जो तुम्हारी ना ये नीचे जो बर्ब स्वीट है, रिकॉन एंज, ये सब तुमने लैब्स की नहीं. ये नीचे वाली सारी चीजें ऑलमोस्ट मुझे पता है. वो स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स है ना, उनको मैं बस चाह रहा था. बस ठीक है ना. सो देखो, बात सुनो, याद रखो, अभी डेवऑप्स आने वाला है. तुम लोगों की सारी जॉब्स के अंदर डेवऑप्स सेकऑप्स मर्ज कर रहे हैं. ठीक है? तो अब जो जॉब्स आ रही है, देखिए होगा ऑलरेडी. ठीक है? तुम्हें डेवलपमेंट सीखनी पड़ेगी इब्राहिम. तुम्हें जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन तुम्हें डेवलपमेंट सीखनी पड़ेगी. तुम उसके लिए तैयार रहना. तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी. ठीक है? और दूसरा फैसला, डाटा साइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है. मतलब जो इंटरव्यूज हुए हैं, उन्होंने मतलब वीपी के साथ जितने भी मेरे इंटरव्यू हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट के साथ, उन्होंने डाटा साइंस की लाजमी बात की है कि हमारे पास डाटा बहुत ज्यादा हो गया है और हम मतलब ये भी रखते हैं. मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ मेरे भाई. देखो तुम लोग जो ना, तुम लोग 1 मिनट सब्र करो. मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ. तुम लोगों को ना लाजमी, मैं इसलिए तो सबको बोलता हूँ कि कैट पढ़ो कैट, लेकिन असल में लोग सुनते नहीं है ना. ये बात मैंने इसीलिए की है कि जो भाई सुन रहे हैं वो इसलिए कि मेरे काफी इंटरव्यू वाइस प्रेसिडेंट्स के साथ हुए हैं, मतलब कंपनी के वाइस वीपी टेक्नोलॉजी, उन्होंने मुझसे अल्लाह ने वीपी तक पहुंचा दिया. ठीक है? देखो भाई मेरी बात सुनो. ये जो कैट है ना, कैट, इस कैट के अंदर ये बिग डेटा तो मैं तुम्हें खोल के दिखाता हूँ, AI वाला भी खोल के दिखाता हूँ तुम लोग के, ताकि थोड़ा सा मुंह में पानी आए. ठीक है? ब्लॉकचेन का बड़ा जबरदस्त शामिर आमिर बहुत अच्छी तुम लोग की लैब्स बना. सिसऑप्स का तो ट्रैक अलग है. ये है तुम लोग का कैरियर एडवांसमेंट ट्रैक. कैरियर एडवांसमेंट ट्रैक में ना जो ये चीजें हैं, साइबर कॉर्ड्स के अंदर ये सारे सेक्टर्स हैं, और फिर डेटा साइंस है, फिर सिसऑप्स है, फिर गनीमा लैब्स हैं, फिर मैथ है, लिंक्डइन है, आइल्ट्स है, ताकि फॉर यूके और EU यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन. ये इतनी चीजें हैं कि मैं तुमको बता नहीं सकता. और तुम्हें बात सुनो, तुम कह रहे थे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जा रहा हूँ. कोई जाने की जरूरत नहीं, कुछ फायदा नहीं है भाई तुमको. तुम क्यों जा रहे हो?
अच्छा, ये है हमारा बिग डेटा का ट्रैक। पता है ये बिग डेटा में क्या हो रहा है? बिग डेटा में हमारी इतनी सारी लैब्स बन रही हैं, AWS की तमाम सर्विसेज की लैब्स हैं, 1 महीने में कंप्लीट हो जाएंगी। हम इसको लॉन्च करेंगे फरवरी के मिड में। इसमें आपका कैट जिसने पढ़ा होगा तो आगे कर सकता है, जिसने कैट पढ़ा हुआ है तो उसको कम पैसे देने पड़ेंगे, वरना इसकी कॉस्ट जो है वो 3 साढ़े 3 लाख रुपए है, क्योंकि इसमें इतने सारे मॉड्यूल्स हैं सारे, और इसकी पूरी हैंड्स ऑन लैब्स हैं। इसी तरह जो हमारा ब्लॉकचेन का एडवांसमेंट ट्रैक है, ये AI का एडवांसमेंट ट्रैक है। AI के एडवांसमेंट ट्रैक में ही पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया डॉक्टर सालिया। ठीक है, वॉक थ्रू है, कोड वॉक थ्रू है, सब चीजें हैं। इसके बाद फिर ये है ML है, ML मशीन लर्निंग की पूरी डीप डाइव है, सारे ओपन सोर्स टूल्स हैं। फिर हमारी ये लैब्स हैं, सारी लैब्स हैं। यानी कि जो अगर तुम ना अमेजोन की वेबसाइट पे जाओ और तुम्हें अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर डेवऑप्स की जो सोल्यूशन नजर आती हैं, या जो भी तुम्हें वो जो भी सोल्यूशंस दे रहा है ना, वो सब की सब सोल्यूशंस पे हमने सोल्यूशन बनाकर उसको इस्तेमाल करके तुम्हें दिखा दी। और फिर आखिर में आता है ये हमारा ब्लॉकचेन का एडवांसमेंट ट्रैक। ठीक है, इसके अंदर आपका ये ग्रीन वाला पूरा कंप्लीट हो गया है फरहान का, और ये जो है ब्लॉकचेन का, ये अभी अगले 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हम इसको जनवरी के एंड में या फरवरी के फर्स्ट वीक में लॉन्च करेंगे। ये लैब्स हैं सारी इसकी, और ये शामिर आमिर जो है इस पे काम कर रहा है हमारी टीम के साथ। उसको मैंने 3 लोग दिए हैं, डेवलपर्स और पेन टेस्टर, सब जो इस पे काम कर रहे हैं। तो अगर तुम लोगों ने जो है ना डेटा साइंस नहीं पढ़ी, देखो डेटा साइंस ऐसी पढ़ोगे ना कहीं जॉब नहीं मिलेगी, बेरोजगार रहोगे। मैं लिख के देता हूँ, पत्थर पत्थर पे लिखो और पत्थर अपने सामने रखो, और जब जाओगे ना इंटरव्यू के लिए, जॉब नहीं के पत्थर सर पे मारना, ठीक है? सही है। लेकिन अगर तुमने कैट पढ़ा तो तुम पूरी इंडस्ट्रीज की, सारी दुनिया की इंडस्ट्रीज पढ़ते हुए आ रहे हो। फिर जब तुम अप्लाई करोगे और फिर जब डेटा साइंस पढ़ते हो, तुम उस कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करके जा सकोगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है इब्राहिम, मैं तुमको बता रहा हूँ बार बार। ठीक है, तुम्हें मैंने इस टीम में डाल दिया ना, टेस्टिंग वाली टीम में, R&D की टीम में डाल दिया ना उधर। नहीं, मेरी बात ही थी, वो कह रहे थे फैसल भाई डालेंगे। मैंने वो मुझे डाल देना फैसल भाई। अभी डाल देता हूँ तुमको। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि जितने भी बाकी भाई सुन रहे हैं कि वो डाटा साइंस लाजमी, मतलब वो बात करते थे कि हमारे पास डाटा बहुत ज्यादा हो गया है और हम अभी और भी हायर कर रहे हैं लोग डाटा साइंटिस्ट, वो बात करते थे लाल। मैं तुम्हें इस ग्रुप में डाल रहा हूँ। इस ग्रुप में ना काफी सारे लोग हैं, और ये खास ग्रुप है। जो 70% कोर्स करता है ना, फिर उसके बाद हम उसको आगे लेके जाते हैं। उससे पहले कोई शुरू में आके काम नहीं कर सकता। तुमने काफी सारी चीजें की हुई हैं इब्राहिम, तो मैं तुमने इसमें डाल दिया मैंने। ठीक है, तुम भी जो है ना उसमें टेस्टिंग करो। सारी लैब्स जो जितनी आ रही है ना, अभी WSTG की जो लैब्स हम रिलीज करने वाले हैं ना, वो पहले तुमको मिल जाएंगी, तुम जाके टेस्ट करो। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह। अब और कोई सवाल तो नहीं है तुम्हारा इब्राहिम? मुझे जाना है फिर, ठीक है? नहीं फैसल भाई, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत बस शुक्रिया। ठीक है, जाओ अपनी कोशिश करो, अपनी मेहनत करो। जब तुम्हारी जॉब हो जाए ना, फिर मेरे घर पे अजवा खजूर भेजना इंशाल्लाह। नहीं, मैं वो आपको कह रहा था, फैसल भाई पड़ी मेरे पास मदीना शरीफ की। वो मुझे किसी ने मदीना शरीफ से फोन किया और मैसेज किया कि उसने कहा मैं भेजता हूँ आपके लिए। वो मेल में भेज रहा है। मुझे सिर्फ अजवा पसंद है, बाकी मिलती हैं, मैं लेता था, बहुत महंगी पड़ती हैं यहाँ पर। नहीं, लेकिन मेरे पास पड़ी है। मैं इससे कह रहा था कि मेरे पास मदीना शरीफ की पड़ी है। कितनी लेकर आए थे वहां से? मैं फैसल भाई लेके सिर्फ खजूर ही आया था, बात समझे। क्या इतनी सारी लेके आए थे? अच्छा। जी, अभी तक मेरे पास पड़ी, वो अभी 2 पैकेट रह गया बस अब। तो बस तुम्हें रमजान आ रहा है, तुम रमजान में खाओ यार। नहीं नहीं, मैं और मंगवा लूंगा, वो कोई मसला नहीं रसूलुल्लाह इंशाल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत पसंद थी, वो खाते थे बड़े हाँ, शौक से। सल्लल्लाहु ठीक सल्लल्लाहु। है ना? ठीक है, तो तुम खाओ उसको। और रमजान अभी आने वाला है, 2 महीने रह गए हैं बस रमजान में। ठीक है ना, फरवरी मार्च अप्रैल को रमजान है। ठीक है, इंशाल्लाह। हाँ ठीक है ना। चलो इंशाल्लाह, ठीक है, चलो अपना ठीक अब है, मेहनत करो, जज़ा अल्लाह ताला से दुआ करो, और सुबह उठ के इंशाल्लाह। अल्लाह से मांगना, खूब मेहनत करना, जल्दी सो जाना रात को, सुबह उठना, और खूब मेहनत करना, ताकि अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी दे फरमाए। ठीक है इंशाल्लाह, चलो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हारिस, क्या सवाल है आपका? एक दो सवाल लेता हूँ फिर मैं करता हूँ। जी हारिस, बोलिए, बोलिए हारिस। सर आवाज आ रही है आपको? बहुत हल्की आवाज आ रही है। अच्छा, ये है कि सर मैं यूके आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी अभी कुछ दिन पहले ही पहुंचा। और जो है ना यूनिवर्सिटी आपसे बात हुई थी पहले, UW ब्रिस्टल में।
सारे स्टूडेंट मेरे बाहर पहुंचे हुए माशाल्लाह। तुम कब पहुंचे यूके? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 दिन का क्वारंटीन किया है और तकरीबन मुझे 4-5 दिन हो गए। गुड माशाल्लाह। अभी हम कॉलेज भी खोलने वाले हैं वहां, तो फिर पूरा पाकिस्तान बैठा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो बहुत जब अच्छी आपका कॉल जब अभी आपका कॉलेज खुला, मेरा एडमिशन हुआ यूडब्ल्यू में, सो आई डिसाइडेड कि कहाँ जाना चाहिए। सो मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के नहीं, तुम्हारे किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है? अपनी जरा अपना जरा हाँ चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ तुम्हारा अपना। और अभी यूके में क्या टाइम हो रहा है? तुम सोए नहीं अभी तक? ये तो बहुत रात हो रही है। 6 7 8 9 10 11 12 12 बज रहे 11 हैं। बजे हाँ, 11 बजे सर, एक्चुअली जॉब कंप्लीट हुई ना, अभी डायरेक्ट जॉब लग गई है अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक रेस्टोरेंट के अंदर लग गई थी ताकि थोड़ा खाने पीने तुम्हें में आए हुए थोड़ी 2 दिन सी। हुए हैं, तुम काम पे भी लग गए। सर मैं खुश नहीं हूँ, वो रेस्टोरेंट की जॉब है ना, तो मुझे जो चाहिए थी कि कोई फील्ड की मिल जाए तो तुम तो। किस यूनिवर्सिटी में गए? किस यूनिवर्सिटी में गए तुम? डब्ल्यू ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, ब्रिस्टल। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल में। भाई देखो, तुमको मैंने कहा था, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, बैठ के तुमने कैट पढ़ना है, वरना तुम यहाँ से चले गए सर हो, पाकिस्तान से चले गए हो यूके। मैं सबको यही बोलता हूँ, सुन लो मेरी बात, तुम लोग सुनोगे यूके पहुंच जाओगे। सब पहुंच रहे हैं, सब एक एक करके जा रहे हैं। 1 लाख बंदा मैं पाकिस्तान से निकाल सकता हूँ। 1 लाख बंदा जाएगा और वो 1000 पाउंड भी लगेगा भेजेगा, तो वो 1 बिलियन पाउंड हो जाएंगे महीने के। वो बच्चे पैसे भेजते हैं अपने घर। पाकिस्तान के ऊपर टोटल 120 बिलियन कर्जा है जो हम सूद खाते हैं। ठीक है, तो हारे जमीन बड़ा आसान काम है। कौन सी जगह पे हो तुम अभी? अभी ब्रिस्टल पहुंचा हूँ, अभी लंदन से 2 दिन पहले ही ब्रिस्टल शहर में आया हूँ। इसमें तो खाली खाली शहर है, कोई है ही नहीं उसमें। मतलब कि मैं वहाँ एग्जाम देने आया था बहुत पहले, तो सेंटर नहीं, सेंटर भरा हुआ है माशाल्लाह से। और जॉब उधर तो हायरिंग कितनी चल रही थी, मतलब रेस्टोरेंट में। और जो वो होते हैं ना पार्ट टाइम असिस्टेंट वगैरह, तो फिलहाल अभी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। साथ में भी मिल जाती डॉइट्स का है। तुम्हें जॉब मिल जाएगी। तुम फीस के पैसे कितने जमा करके आए थे? कितने पे करके आए थे? अब मुझे खाली पार्ट टाइम जॉब ही करनी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास 8,000 फीस है और अभी पड़ी है, तो 2,000 लेफ्ट है, वो हो जाएगी इंशाल्लाह। बट ये बस कि तो मेरी तुम्हें टोटल पढ़ाई करनी है मेरे भाई। देखो, तुम पढ़ाई करोगे तो तुम रेस्टोरेंट के मालिक बन जाओगे। लेकिन अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम रेस्टोरेंट में डिग्री लेके भी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो। देखो, में डिग्री जो है ना, सुन लो मेरी बात, मैं सबको बार बार बोलता हूँ, डिग्री तुम्हें पाकिस्तान से बाहर ले जाकर वर्क परमिट दिला देगी। वो तुम्हें मिल गया, वो तुम्हें मिल जाएगा जब तुम डिग्री खत्म करोगे। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट 2 साल का मिलेगा। लेकिन अगर तुमने अभी ये कैट खत्म कर लिया, अभी जोर लगा दो। अभी यूनिवर्सिटी स्टार्ट कब हो रही है? फरवरी में सेशन स्टार्ट होता है ना? सर मेरा जो है ना तकरीबन 28 जनवरी को पहली क्लास है। बट ये कि अभी सेशन चल इंडक्शन रहा है, होगा इंडक्शन। तुम्हारा 28 जनवरी को। इंडक्शन अभी टाइम है 5 दिन। तुम रात को बैठकर भाई होटल में जो भी काम है पार्ट टाइम करो। बोलो भाई, तुम्हें यहाँ पर पढ़ने लिखने के लिए आए हो तुम। ठीक है, पढ़ने। मैं यस सर, 6 महीने तक कैचअप और डबल रोटी खाता रहा। ठीक है, ठीक है सर ना, मैं भी यही कैचअप और डबल रोटी। मैं तुम्हें नहीं कहूंगा कि तुम वो खाओ। मैं बहुत मतलब कि ना बैल बन के गया था वहां से। ठीक है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। सही है, मैं मतलब कि ना एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर था। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इस तरह करने की। मैं तुम्हें मशवरा दे रहा हूँ भाई कि तुम्हें जो तुम्हारा आसान काम है, वो हमारा जिम था, बड़े सारे उसमें सारे तालिबान बैठ आते थे एक्सरसाइज करने। मुफ्ती रशीद रहमतुल्लाह अलैह के मदारिस के सब लड़के आते थे। मैं उस जगह जाता था, पावर जिम उसका नाम था, गुलशन इकबाल में। फजर के बाद सब बैठे होते थे वहाँ पे। ठीक है, तो वहां पर एनीवे द पॉइंट इज, जो तुम्हारा काम है ना, जो तुम्हारा काम जी। वो पढ़ाई करना है। इतने पैसे कमाओ कि तुम्हारा गुजर बसर हो, खर्चा वर्चा निकल जाए। तुम यूनिवर्सिटी जाओ, तुमने यूनिवर्सिटी में पहले ही, ठीक है, पहले से ही हर चीज तुमने खत्म करनी है अपनी, क्योंकि तुम्हें कैट पढ़ने से तुम सब चीजें खत्म कर चुके हो और तुम जॉब पे बैठे हो। ठीक है, सर ऐसे सॉफ्ट पढ़ रहा हूँ, तकरीबन हाफ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। घर से करके ही आ रहा था, तो जब से रोजाना 8-8 घंटे दे रहा हूँ, 8-8 10-10 घंटे, हाँ तो हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बस तुम्हें यही काम करना है। देखो, अगर मैं अभी जाता हूँ ना इस पे, इसी सॉफ्ट करना है, लाजमी करके आना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। सिसॉप से तुम्हें खत्म करना है, और डेटा साइंस और ये कॉर्ड्स सब तुम्हें पढ़ना है। देखो, अगर मैं लिखता हूँ लिनक्स, ठीक है, और ये सारी रिमोट जॉब्स तुम्हें मिल जाएंगी। 10,000 जॉब्स हैं यार रिमोट। ठीक है, जॉब टाइप तुम्हें देखो, परमानेंट, फुल टाइम, कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट टाइम जॉब्स तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगी। तुम पार्ट टाइम बोलो यार मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अंदर फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, आईटी टेक्नीशियन फिक्स टर्म यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अंदर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, क्रॉयडन के अंदर। ठीक है, ये तो होम ऑफिस का है।
ठीक है, होम ऑफिस में तुम काम करोगे, बोला कि यार यहीं से वीजा निकलता है, उसके बोलना है यार कि जरा यार वीजे का टाइम आ गया है, वो रिन्यू कर देना जरा। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्ट इंजीनियर, स्कॉटिश गवर्नमेंट, इतना काम है इन लोगों के पास, बंदे नहीं है इनके पास भाई। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ब्रिस्टल, देखो सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, ग्रेट। मतलब कि काम इनके पास बहुत है डेवऑप्स का। अगर तुमने ओ भाई अगर तुमने डेवऑप्स पढ़ लिया ना कैट के साथ, फिर तो तुम पता नहीं क्या भला बन जाओगे कि मैं तुमको बता नहीं सकता, ठीक है। मुझे मैं जो है ना स्लोली स्लोली चलता जाऊँ, ताकि यूनिवर्सिटी भी होगी और साथ में मैं इसको ना तकरीबन 3 से 4 घंटे रोजाना देना चाह रहा हूँ, ताकि जो है ना यूनिवर्सिटी भी पढ़नी होती है ना, हाँ तो हाँ, फिर जो है यूनिवर्सिटी में तुमने मेहनत करनी है, यूनिवर्सिटी तुम्हारे ऐसी पास हो जाएगी, तुम सर, देखो। हाँ वो तो उससे मैंने देखा है कि वहाँ तो थ्योरी पढ़ाते हैं। मैंने अभी साइबर सिक्योरिटी का एक लड़का है, वो पिछले हफ्ते पर इनटेक है, उसने बोला थ्योरी है, तो मैं समझ गया आपकी बात सही निकली, भाई थ्योरी है ही नहीं। मैं, तुम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में भी जाओगे ना, वो भी तुम्हें स्लाइडें बोर्ड पे पढ़ा के चला जाएगा। एक पीस ऑफ कोड, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कुछ भी तुम्हें कोई हैक कुछ भी नहीं सिखाएगा। बस यहाँ राइटिंग करना सिखाते हैं कि कैसे आपने रेफरेंसिंग करनी है, हाँ, साइटेशन बस क्या है। ये भाई प्रोफेसर जो ना, प्रोफेसर सारे, मैं सब प्रोफेसर को तुम सब फारिग हो गए, किसी ने इंडस्ट्री में काम नहीं किया होता, बस प्रोफेसर खड़े होकर बात करते हैं, ठीक है, काम किसी को नहीं आता। लेटर बहुत अच्छा, वो ना रिसर्च पेपर बहुत अच्छा लिखेंगे, लेकिन रिसर्च पेपर, दुनिया रिसर्च पेपर से नहीं चलती भाई, दुनिया प्रैक्टिकलिटी पे चलती है, ठीक है ना। तुम्हें एक स्कॉलर मिलेगा, ठीक है ना, जो तुम्हें किताबें लिखता रहेगा, एक स्कॉलर मिलेगा जो माशरे के अंदर होगा और सच लोगों को बोल रहा होगा, यार सच बोलो, झूठ नहीं बोलो, यार गलत काम नहीं करो, वो ज्यादा प्रैक्टिकल आदमी है, ठीक है। आज मैंने एक बड़ा अच्छा कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर एक पूरी ना, एक पूरा आर्टिकल लिखा फेसबुक के ऊपर, ठीक है, कि अल्लाह ताला कॉज एंड इफेक्ट पे क्या बात करते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं, अल्लाह ताला बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि भाई जो तुम बोगे उसको तुम रीप करोगे, व्हाट यू सो इज व्हाट यू विल रीप, ठीक है ना। जैसे अमाल करोगे तुम्हें अल्लाह ताला वैसे वो देगा, तुम्हारे अमाल अच्छे होंगे अल्लाह ताला तुम्हें बेहतरीन वो देगा, और अगर तुम्हारे अमाल अच्छे नहीं होंगे, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि भाई मन आमिल सालिहन फला यफसिहु वमन, मुझे पूरी आयत याद नहीं आ रही, उसका उसका वो है, whoever does righteous यानी कि डीड्स, जो भी अच्छे अमाल करे, और और तो वो अच्छे अच्छे अजर कमाएगा, और जो गलत अमाल करेगा वो गलत अजर कमाएगा, ठीक है। और अल्लाह फरमा रहे हैं, और अल्लाह जो है ना अनजस्ट नहीं है, जुल्म नहीं करते, वमा रब्बुका बिज़ालिमीन लिल अबीद, ठीक है ना, यानी अल्लाह कह रहा है कि मैं जुल्म नहीं करता किसी के ऊपर। फिर अल्लाह आगे फरमा रहे हैं कि बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई सब तारीफ अल्लाह के लिए हैं, और अल्लाह के पास एट्रीब्यूटेड नॉलेज है, द आवर ऑफ द नॉलेज इज विद अल्लाह, यानी कि कब कयामत आएगी, और जो फ्रूट्स जो जमीन में उगते हैं उसका क्या होगा, ठीक है ना, और माँ के हमल में क्या है वो भी अल्लाह को पता है, यानी कि ये सारी चीजें जो है अल्लाह को पता है, ठीक है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि गैब का इल्म सारा अल्लाह के पास है, अल्लाह कुरान में कह रहे हैं, कुरान की आयत है, ठीक है। सूरह फुस्सिलत में कहाँ पर मुझे सही तरह याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है उसमें, और वो ये है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं, क़द खलत मिन क़ब्लिकुम सुनन फसीरू फिल अर्ज़ि फंजुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सिमिलर सिचुएशन एज योर्स हैव पास्ड ऑन बिफोर यू, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसे जो तुम्हारी सिचुएशन थी ना, उस तरह और लोगों के ऊपर भी आ चुकी है। सो प्रोसीड थ्रू आउट द अर्थ एंड ऑब्जर्व हाउ वाज द एंड ऑफ दोस डिनाइड। अब अल्लाह ताला, अब ये आयत ऐसी खतरनाक आयत है, ठीक है ना, और अल्लाह ताला कह रहे हैं सूरह आल इमरान के अंदर कि भाई हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री तुम्हारे जैसी सिचुएशन दूसरों पे भी गई है, जिसने अच्छा अमाल किए, मेहनत की, उसको अजर मिला, जिसने कुछ नहीं किया उसे कुछ नहीं मिला, और उसको सख्त अल्लाह ने पकड़ा। और फिर ये लंबी आयत, बहुत लंबी आगे वो है, तो ये जो आयत है ना ये बड़ी, और फिर अल्लाह फरमा रहा है हादा बैना लिन्नासी व खुदा व मौइज़तल लिलमुत्तकीन। अल्लाह फरमा रहा है दिस कुरान इज अ क्लियर स्टेटमेंट टू ऑल द पीपल एंड द गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर दोज कॉन्शियस टू अल्लाह, यानी कि जो अल्लाह से डरते हैं, ये क्लियर स्टेटमेंट है। तो देखो मैंने तुम्हें क्लियर स्टेटमेंट दे दी, मैं तुमसे कह रहा हूँ भाई देखो हिस्ट्री से सीखो, 22 साल 25 साल की हिस्ट्री तुमको बता रहा हूँ, सीखो। अगर तुमने नहीं पढ़ा तो तुम कुछ नहीं करोगे, लेकिन अगर तुमने पढ़ लिया
और तुमने वो सारी चीजें फॉलो कर ली जो तुमको बता रहा हूँ, तुम 6 महीने के बाद जॉब पे बैठे हो। मैं बता रहा हूँ ना, 2 साल के बाद तुम्हारा रेस्टोरेंट होगा। हारिस सर मैं साहब क्या कर रहे हैं? हारिस साहब ने ना टिक्की की दुकान खोली। कहाँ के रहने वाले हो? लाहौर के? कहाँ के? सर हैदराबाद का हूँ। ये वैसे हमारी जो फैमिली ज्यादा है तो वो बोलो मलकान। यार, हैदराबाद रबड़ी हाउस, हारिस रबड़ी हाउस तुम खोल दो। जबरदस्त, हैदराबाद की रबड़ी बड़ी मशहूर है ना, ठीक है। ये बोलो भाई बैठ हैदराबाद हारिस रबड़ी हाउस तुम खोल दोगे ब्रिस्टल में, किसी का नहीं है वहां पर, तुम देख लो किसी का नहीं हो। सर और मुझे दूसरे ये आगे करना खाएंगे, ही बोलेंगे यार जबरदस्त चीज है ये। बोलो भाई कीटो फ्रेंडली बनाया तुम्हारे लिए, फैट ही फैट है सारा, खाओ तुम, कीटो फ्रेंडली है, फैट डाइट पर हो तुम। ठीक है, तो बेहतरीन है यार तुम, माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई। ठीक है, मेहनत करो भाई, मेहनत करो यार, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी तक दूंगा। में ठीक डाल है, दें डेट, ताकि मैं थोड़ा ना सहारा हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा टाइम वेस्ट, जिस तरह अभी मैं मीटिंग में थोड़ा वेट करता रहा, क्योंकि मैं फिर वरना थोड़ी पढ़ाई करता ना, तो ये वेट करना पड़ा मुझे इस वजह से। तो ये मैं कह रहा हूँ कि वेट ना करना चाहिए। जितनी मैं जो बसों में भी ट्रेवल करता हूँ, ये आपको पता है फर्स्ट बस चलती है वहाँ पे ना, बहुत स्लो तो चलती मैं है, बस बड़ा टाइम होता है। जी बसें बहुत स्लो चलती हैं, बड़ा टाइम होता है। सर फिलहाल अभी जो है ना हाउस जितना दूर मिला है ना, क्या करें, हाउस जो हाँ है तो ना तुम्हारे पास तकरीबन। टाइम है, अच्छा है। मैं बस में जाता था, तो मैं जब बस में जाता था, तो मैं जाते जाते जहाँ जाना होता था, तो वहां जाते जाते ना 2-3 सिपारे खत्म हो चुके होते थे। बिल्कुल मैं वीडियोस ना अपना मोबाइल में रख लेता हूँ, और जो है और ना फिर बस मैं क्या देखते करता देखते। था, वापसी में सुबह सुबह जब जाता था, तो एक सिपारा पढ़ लेता था। उसके बाद जो है ना, ये मेरा कुरान था मेरे पास, ये अभी तक है मेरे पास। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत पुराना हो गया है, बहुत घिस गया है, इसकी हालत खराब है, लेकिन अंदर से बिल्कुल साफ है। ठीक है, पाक से कम से अच्छा। बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, और मैंने बड़ा संभाल के रखा है इसको ना। और इसमें मैंने सारी बड़ी इसमें एक जमाने में बहुत सारे वो लगे हुए थे, बुक मार्क सारे निकाल दिए मैंने। ठीक है, अब मैं दूसरा पढ़ता हूँ। वो अब मेरा जो मुसहफ है वो मदनी मुसहफ है। ठीक है, वो सारे मसरी कारी अलग पढ़ाते हैं, लेकिन ये मेरा बहुत पुराना साथी है। ठीक है, मैं पढ़ रहा होता था, और वापसी में जब वो खत्म हो जाता था, फिर मैं इसके बाद ना शॉन हैरिस के लेक्चर सुनता था। अब शॉन हैरिस इंग्लिश में बात करती थी, इंग्लिश थी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं इसको सुनता था। तुम्हें शॉन हैरिस की सुनने की जरूरत थी तो मुझे सुन लो, लेक्चर सुनो, नोट्स पढ़ो, तैयारी करो भाई, तुम अपनी, तुम्हारा टाइम जाया नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? तो ठीक है, टाइम जाया नहीं कर बस में। टाइम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने टाइम पकड़ लिया ना मेरे भाई, तो हारिस अमीन तुम बैठे होगे 6 महीने के बाद जॉब पे। सर 45 मैं 85 to 40,000 पाउंड तुम्हारी जॉब होगी, और तुम ब्रिस्टल में बादशाहों की तरह रहोगे, जबरदस्त घर ले लोगे, बोलोगे यार हलाल खा रहा हूँ जबरदस्त, और रोज आना तुम्हारे घर में, और तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए एक मैना भी ले आएगी। ठीक है, सही है, और बस सपोर्ट चीजें कर। तुम्हारे घर में घूम रहे होंगे, मसला ही नहीं कोई। ठीक है, सही है ना भाई? जी जी मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल। और अच्छा मुझे जो है ना सर कोई ग्रुप श्रुप में ऐड कर दें, जो ताकि जो है ना थोड़ी हेल्प वगैरह मिलती जाए। कोई यूपी का है कोई ग्रुप ऐसा जिसमें यूपी के लड़के रहते हैं सारे के सारे, वो भी फील्ड के ही हो, ताकि सब हेल्प करें, जैसे कहीं ना कहीं मिस्टेक आए, कहीं ना कहीं कोई मसला हो, हाँ देन वी। हाँ हाँ, है मेरे पास काफी सारे हैं। वो सब जो हैं, एक पाकिस्तान शादी करने आया हुआ था मोहम्मद उमर, पता नहीं इसकी शादी क्या हुआ, उसने क्या किया, दूसरे लोग आगे पीछे ऊपर नीचे घूम रहे हैं, मुझे पता नहीं। याद है जब पिछली हाँ, मैं बना दूंगा, इसको बना दूंगा। असल में मैं खुद इतनी जगहों पे नहीं बैठता भाई, देखो तुम्हें किसी ग्रुप की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जी डायरेक्ट सर। टेस्टिंग ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है, जहाँ तुम्हें लैब्स टेस्ट करने को मिलेंगी, वहां तुम सबके साथ बैठो, काम करो, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, सही है जी ना? जी सर। चलो ठीक है, तो तुम मुझे मैसेज करो अपना नंबर और ईमेल एड्रेस मैसेज करो कि तुम्हारा कैट पे क्या रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है, तो मैं तुम्हें उस ग्रुप में डाल देता हूँ। जी सर, just 1 second। ठीक है, ये नंबर है मेरा, ले लो, इस पे करो इंशाल्लाह। देखो तुमसे अल्लाह ने बात करा दी अभी। ठीक है, बस चलो जाओ यस आराम करो भाई, नमाज के लिए तैयारी करना चलो। ठीक है, मेरी अजान भी हुई है। ठीक है, चलें, बिल्कुल। बस चलें, चलिए मैं जा ठीक रहा हूँ चल। हाँ बोलो बोलो, ठीक क्या आपकी बात? सर। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी, मोहम्मद अली, कौन से मोहम्मद अली है भाई? ये कौन सा मोहम्मद अली है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन सा, हैदराबाद वाला मोहम्मद अली रॉल? जी 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 फैसल भाई, जी यार जी तुम यहाँ फैसल भाई बैठे, वही है वो प्रॉब्लम। हारिस सलीम अभी देखो यहाँ से चला गया, वो हारिस सलीम यूके पहुंच गया है यार। एक और स्टूडेंट भी मैं वही तुम सुन यूके से वापस मैं वही सुन रहा था। तुम यूके से वापस आके यहाँ पर डिसर्टेशन लिख रहे हो अपनी, ताकि तुम्हें वर्क परमिट मिले। देखो वो कितनी मेहनत कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तुम वहां बैठ के सही रबड़ी बात खा रहे हो हैदराबाद में, मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान। है।
अच्छा कब आ रहे हैं फैसल भाई? 2 मई को मेरी फ्लाइट है इंशाल्लाह, ठीक है। कब, हफ्ते को? 2 मई को, 2 मई को अच्छा रमजान 2 आखिरी मई। रोजा होगा हमारा, तो हम जहाज में रोजा खोलेंगे इंशाल्लाह। हो सकता है अच्छा आखिरी रोजा अच्छा, हो गया, अगर 30 रोजे पूरे होते हैं तो आखिरी रोजा होगा, ठीक है। तो ठीक है। इंशाल्लाह। अच्छा फैसल भाई, मेरा एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग आईएसओ का। मैंने कोर्स कंप्लीट किया है 27001 का। तो उसमें आपने शुरू में डॉक्यूमेंट्स मैपिंग बताई है 27001 की। तो और 27017 और 18, मैंने सिर्फ 27001 देखा है, बाकी के स्टैंड्स तो मैंने देखे नहीं है। लेकिन फैसल भाई उसमें ये है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स पे आपने क्रॉस लगाया, जैसे क्लाउड सिक्योरिटी पॉलिसी और इस तरह के कोई दूसरे भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मतलब उसमें आईएसओ 27001 का रेफरेंस है, लेकिन वो उसमें मतलब क्रॉस नहीं है। जैसे क्लाउड सिक्योरिटी पॉलिसी है वो तो मुझे पता है में नहीं है आईएसओ 27001 में, लेकिन बीवाईओडी पॉलिसी है तो उस पे आपने क्रॉस लगाया 27018 में, लेकिन क्लॉज लगा दिया 27001 ए 6.2.1। तो इसका क्या मतलब है फैसल भाई? थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। 621 जो है वो स्टैंडर्ड में उसका रेफरेंस नंबर है, ठीक है। और उस 27001 27017 में नहीं आता, लेकिन 27001 में उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पर ये है, उसका मतलब ये है। तो मैं तो मतलब फैसल भाई ये है कि जिस पे क्रॉस लगा हुआ है तो वो एप्लीकेबल है उस मतलब सर्टिफाई करवाने के लिए, लेकिन वो लिखा उसका हुआ रेफरेंस भी है। होगा, मेरे सामने डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं देख के नहीं बता सकता, लेकिन उसके नीचे लिखा हुआ होगा कि वो क्या चीज, ठीक है। सही है ना, तो वो मैं देख के तो मैं बता दूंगा, अभी मेरे पास है नहीं और मुझे उठ के जाना भी है यहाँ से, ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैं देख लूंगा ठीक है मोहम्मद फैसल भाई, अली वो। मैं फिर ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ। हाँ हाँ, वो वहां से ब्रिस्टल से, पाकिस्तान से ब्रिस्टल चला गया, तुम पाकिस्तान वहाँ यूके से अभी डेस्टिनेशन लिखने के लिए पाकिस्तान में, तो वापस कब जा रहे हो? मैं भी चला जाऊंगा फैसल भाई, मैं मार्च तक चला जाऊंगा इंशाल्लाह। मार्च में सब चीजें बैठ जाएंगी, अब तो उन्होंने सारी रिस्ट्रिक्शंस भी हटा दी हैं, अब ये दुनिया का हिस्सा रहेगा कोविड-19। अब लोग दुनिया तो बंद नहीं कर सकते, तो लोग मरेंगे जिएंगे, वैक्सीनेशन लगाते रहेंगे, बस काम चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन फैसल भाई फैल तो रहा है, बहुत ज्यादा फैल रहा है, लेकिन असल में अब वो बहुत इसको इन्होंने ओपन कर दिया। इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है, हुकूमत छुपाती भी है, नहीं बताती, कोई सच ही नहीं बोलता, ठीक है। और सारे चोर बैठे हुए हैं ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। ऑपोजिशन पार्टी सारे चोर हैं, और इमरान खान अगर कोई ईमानदार काम करेगा, इमरान खान शिर्क करता है, उल्टी सीधे काम करता है, ठीक है, मज़ारों पे चले जाएगा उधर उधर, तो कहाँ अल्लाह की मदद आएगी उसके साथ। और देखो भाई, कौम को ना ख्वाब नहीं दिखाए, उसको बोलो भाई कमर बांध दो, कमर कस लो, यहाँ पर जो है ना मुश्किल हालात हैं, और वो हालात से लड़ने का तरीक़ेकार यही है कि आप सब लोगों को ना इस्लाम पे चलना पड़ेगा सही तरीके से, तो फिर आप सब समझ सकते हो कि वो, और लोग ऐसे हैं कि जो चलेंगे भी, लेकिन असल में बात ये भी है कि बहुत सारी मेजॉरिटी जो है ना लोगों का ईमान ही नहीं है, वो सूद खाने पे खुश है और अल्लाह से जंग करने पे खुश हैं, लेकिन अगर सूद नहीं खाएंगे और 120 बिलियन डॉलर कर्जा है वो नहीं देंगे, तो लोग जो है ना, महंगाई हो जाएगी, हमारी करेंसी डिवैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हमने उनको साथ जोड़ जोड़ के रखा हुआ है। इस्लामिक मतलब कि हमारी माशरत तो है नहीं, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है ही नहीं। डॉक्टर असद जमान बोल बोल के थक गए, वो बूढ़े हो गए, इतनी जिंदगी में उनके इतने दिन थोड़ी हैं, बोल बोल के थक गया, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट करने वाला नहीं है। और जो इस्लामी बैंक हैं, वो सारे इस्लामी बैंक जो ना, वो नफ़ा बनाने की मशीन है, इस्लामी बैंक तो नफ़ा करता ही नहीं, ठीक है, वो नफ़ा बनाने की मशीन है सारी। तो ये सारी चीज़ें, तो इसलिए बहुत मसले हैं, तो तुम्हें जल्दी निकल जाना चाहिए वहाँ से, ताकि तुम और अपनी चीज़ें ख़त्म करके जाओ अच्छे तरीके से, डेटा साइंस अच्छी तरह पढ़ो, सिसॉप्स अच्छी तरह पढ़ो, तो तुम इंटरव्यू दोगे, तुम निकल जाओगे। मोहम्मद अली तुम बहुत करीब हो, यानी कि तुम्हारी जी फैसल भाई, मुझे 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 काफी लोगों ने, अब कुछ लोगों ने, रिक्रूटर्स हैं, उन्होंने लिंक्डइन पे मुझे कांटेक्ट भी किया है। मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, लेकिन वो मुझसे रिज्यूमे मांग रहे हैं। वो एक तो कोई फ्रांस की है, कोई रिक्रूटर है, तो अभी वो मुझसे रिज्यूमे मांग रही है। कौन सी और कुछ एथॉस, फ्रांस, फ्रेंच कंपनी है, बहुत बड़ी, मैंने काम किया उनके साथ। एनीवे तुम ये फैसल अपनी भाई, CV मत भेजना, सीवी पहले प्रोविटी मुझे। प्रोविटी के नाम से कोई कंपनी फैसल भाई उसने बताई मुझे। प्रोटिविटी अलग कंपनी है, वो ऑडिट फर्म है। हाँ, काफी काम करते हैं वो लोग, उनके पास काफी है काम है। आर्थर एंडरसन से टूट के निकली थी, जब पहले बिग 5 कंसल्टिंग फर्म होती थी, तो उसमें से पीडब्ल्यूसी, डिलॉयट, केपीएमजी, ईएनवाई और आर्थर एंडरसन थी। आर्थर एंडरसन एनरॉन के स्कैंडल में खत्म हो गई थी, तो उसका छोटा सा विंग जो है ना, प्रोटिविटी निकल आ गया, तो प्रोटिविटी एक है।
खैर एनीवे, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह आसानी अता फरमाए। ठीक है, मैं जा जी रहा हूँ। फैसल भाई, अभी फरवरी में रिजल्ट आना है, मुझे दुआ भी कीजिएगा मेरे लिए। भाई अभी मेहनत फाइनल करोगे फिर रिजल्ट दुआ करो, मेहनत की नहीं होगा फिर कुछ नहीं होगा। मेहनत करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। अब तुम कभी इंशाल्लाह। भी सब तुम्हारी अपनी घर वालों को बोल दो कि भाई जल्दी से मेरे लिए मेहनत तलाश करें, और ताकि मेरे पास भी कुछ चूजें हो यार। ठीक है, इंशाल्लाह। शादी वादी कब कर रहे हो तुम? फैसल भाई जॉब की वजह से रुकी हुई है, अब क्या करूँ, लड़की वाले पूछते जॉब हैं का कि क्या करता है। तुम बोलो यार, बड़ा जबरदस्त। तुम बोलो यार, मैं हैदराबाद में रहता हूँ, रबड़ी खाता हूँ, इससे बड़ा कोई काम होगा? लड़की के बाप ही वही अजीब मसला काम है है। बोलो भाई रबड़ी खाता हूँ यार मैं, तुम इस तरह से उसको बोलो। खैर एनीवे, इंशाल्लाह जॉब हो जाएगी, इंशाल्लाह जॉब हो जाएगी। ठीक है, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी फरमाए, खैर वाफियत के मामला फरमाए, इंशाल्लाह जॉब हो जाएगी। ठीक है, चलो जज़ाकल्लाह ठीक खैर। है। इंशाल्लाह दो यूके के स्टूडेंट से मुलाकात हुई। ठीक है, ओके, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।